even during the sessions also. So please bear with me. Yeah, very good afternoon. I hope you guys are enjoying your midsem. So here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us.
Yes, class. So we'll move to the next topic. Let me share the screen. I think now the screen is visible to you. Is it visible, class? Screen is visible to you. Okay, we are going to start with the first part. We'll take a short recap, and then by today only we'll conclude this. Is the screen visible to you? Okay, thank you. You please be online. So far we have gone through with large scale industry. We'll give you a short recap about all those things because these are the important one. You may find questions in your mid-sem as well as in the final examinations. So it started with the large scale industry, the types of large scale industry like iron and steel, textile, automobile, telecom, and so on.
The advantages of large scale industries. This is all we have done. Just for the sort of recap, we are doing it. Disadvantages of large scale industries, and apart from that, it is not compulsory to stick to these points only. You can write your own. You can write it in your own words, because after pandemic the situation is totally different. Large scale is suffering and struggling, but yes, you can write your own points as far as the disadvantage is concerned. So these are the disadvantages: danger of overproduction, less supervision, monopoly, class struggles, dependency on foreign markets, and possibility of war, lack of adaptability. These are the answers. And apart from this, you can also use your own language to answer the questions. Then after, the next one is small scale industry. We have already done with that. पीपीटी में हमने किया था, सभी पीपीटी में एसएसआई, देन गवर्नमेंट सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट टू एसएसआई, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट टू एसएसआई, एंड फंडिंग एजेंसीज फॉर द एसएसआई. दिस इज व्हाट वी हैव डन. But then also for another point, SSI is here. So this is all about the SSI. The advantages of SSI, small scale industries. MSME, that is stands for micro, small and medium enterprises. So these are the advantages: close supervision, more employment, need of small capital, direct relation between the workers and employers, direct relationship between the customers and the producers, freedom of work, and less possibility of strike. Generally, SSI में कभी strike नहीं होती है. डिसएडवांटेजेस क्या? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज हम बल्क में प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन कॉस्ट में बी हाई. देन लेस यूज ऑफ मशीन्स, वहाँ पे मैन पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस है, सो मशीनरी वहाँ पे कम है, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है पॉसिबल नहीं है. Lack of division of labor, difficulty in getting loans, costly raw materials, old techniques, or you can say the technology, and lack of research. These are the disadvantages of small scale industries. Now the next one, that is cottage industries. हमने इसके बारे में बात की थी, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था आईटीसी चोपल का, देन आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पटोला की बात हुई थी, पाटणा पटोड़ा जिसकी हमने बात की थी, वहाँ पे किस हिसाब से. देन खादी ग्रामोद्योग भंडार के बारे में हमने बात की थी. सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज. इट माइट बी पॉसिबल दैट in one liner you may find question like define cottage industry, so you have to write it down. Define cottage industry, what exactly cottage industries stands for. So these are the importance of cottage industries: employment generation, use of local raw material, mobilization of capital, developing entrepreneurship, equitable distribution of wealth, training ground for local entrepreneurs, efficient use of productive factors, and promotion of exports. These are the problems, or you can say the limitations or disadvantages of cottage industry: limited profit, outdated technology, or you can say the less use of technology, lack of standardization and quality control, outdated production methods, electricity problems, technical advice, and further training is limited. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की थी कि आज भी छोटे एरिया में, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है बेसिकली रूरल एरिया में होती है, जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिक के इश्यूज जो है वो काफ़ी होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है. This is about the small scale industries, the examples of small scale industries. This is what we have done. ये एक पॉइंट यहाँ पे हमारा बाकी है, ये वाला इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप टू द फर्म. ये एक पॉइंट बाकी है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये हम कर लेंगे अभी थोड़ी देर में. Apart from that, we have done with the small scale industry, large scale industry, advantage and disadvantage of small scale and large scale industries. These are the examples and ideas of the small scale industries, characteristics of SSI. This is all we have done, right, class? This is all we have done. Yeah, okay, good.
Okay, then the next one is role in Indian economy. SSI's role in Indian economy. This is also we have done. And the cottage industry, we have done with the cottage industry, types of cottage industries, कारपेट मेकिंग यहाँ पे हमने बात की थी, वुवन की और वो सब की, स्पिनिंग मिल की. Then challenges faced by the Indian cottage industries. This is also we have done. Then various factors affecting the selection of a location of an industry. This is also we have done. If you guys can recall, in the last session only we have done with this point. This was the last one. Now challenges for small scale industries, finance, raw material, technology, marketing, infrastructure, skilled manpower, managerials. Now we need to start with this. Barriers affected to international trade, and another one, this is importance of international entrepreneurship to firm. We need to start with these points, right? So far everything is clear. Okay, good. Now, importance of international entrepreneurship to the firm. अब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि जब हमने बात की थी इंटरनेशनल बिजनेस की, डोमेस्टिक बिजनेस की, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो नाउ यू गाइस टेल मी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप. फर्म को उनसे क्या क्या फायदा हो सकता है. Yes, we have already discussed all these points. So I'm expecting some answers. It's quite easy. Class, are you there? It's a very simple question. The question is quite easy. I simply ask that, for example, you are an entrepreneur
and you want to spread your wings into the international market, then what are the importance of that? Why you want to jump to the international market? What are the benefits for the same? यहाँ पे है importance. उसको हम अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, एडवांटेज। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाई एंटरप्रेन्योर्स शुड गो फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड समथिंग लाइक दैट। तो इट कैन बी ट्विस्टेड लाइक एनीथिंग, बट यस, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो सर ने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। So importance of international entrepreneurship to the firm. Yes, you all are right. The global reach, the expansion to the undeveloped markets, better technology, wealth maximization, profit maximizations. Yes, right answers. Your answers are true, correct one. Yes, then apart from this, only Ankita and Dhruv has answered. What about others? Everyone, whatever you have felt, you may answer. बूस्ट, यस, वेरी गुड। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी इमेज जो है वो टोटली डिफरेंट रहेगी वहाँ पे। वेरी गुड। यू आर इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो आपकी इमेज जो है, रेपुटेशन जो है, गुडविल जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हो एंड इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तो अकॉर्डिंगली योर मार्केट रेपुटेशन विल बी अफेक्टेड इन पॉजिटिव मैनर। अगर आप अपना इंटरनेशनल बिजनेस बंद कर देते हो तो उसकी इम्पैक्ट जो है वो एडवर्सली आपके बिजनेस के ऊपर आएगी। जैसे कि कई सारी कंपनीज है, उन्होंने अपना इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बंद कर दिया है, इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो बंद कर दिए, सो दे आर इन ट्रबल। कुछ ऐसी भी कंपनी है जो इंटरनेशनली अपना बिजनेस कर रही है, सो दैट्स गुड एक्चुअली।
सो इट डिपेंड्स आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है। सो इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, सबसे पहला पॉइंट है कि आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, आपका सेल्स जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हो। वहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, वहाँ पे प्राइस का डिफरेंसेस भी आपको मिलेगा, प्राइस वेरिएशन भी आपको मिलेगा, एंड उसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपका सेल्स बढ़ जाएगा एंड साथ में आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो करते हो तो वो फिर एक्सपोर्ट भी हो सकता है, खुद का वहाँ पे एक यूनिट भी हो सकता है, फ्रेंचाइजी हो सकता है, लाइसेंसिंग भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। देन द सेकंड वन इज लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अब आप पूछोगे कि वो कैसे हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल सर्टेन कंट्रीज में आपको रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी सस्ता मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें दुबई की, गल्फ कंट्रीज की, तो वहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस जितने भी है तो वहाँ पे क्रूड के प्राइसेस काफ़ी कम है। अगर वही क्रूड हम इंडिया में परचेस करेंगे तो उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे ही जो रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल है ऐसी कंट्री में, जैसे कि अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़िया है, काफ़ी बड़े बड़े रिजर्वायर जो है वो नेपाल में आए हैं। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा कोई पैकेजिंग मिनरल वाटर का या फिर पानी के रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो तो बढ़िया बेनिफिट रहेगा वहाँ पे, एंड सो ऑन। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। So lower manufacturing cost, then growth opportunity will be high. ग्रोथ के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बेसिकली जहाँ पे आप बिजनेस करते हो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कस्टमर्स आपके रहेंगे, लिमिटेड कस्टमर्स आपके रहेंगे। बट यस, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, आप उसको एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हो, एंड इंटरनेशनली आपको काफ़ी सारे नए कस्टमर्स जो है, ट्रेडर्स जो है, बायर्स जो है वो मिल सकते हैं। तो दैट्स गुड एक्चुअली, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी, एंड प्लस आप एक लिमिटेड रेडियस में बिजनेस करते हो, उससे ज्यादा फायदा आपको तब मिलेगा जब आप बड़े बिजनेस को लेकर बड़े पैमाने पे उसको इंटरनेशनली फ्लोट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी रिवर, आपकी एक रिवर है, आपकी एक बोट है, आप अपनी रिवर में अपनी बोट को चला रहे हो, तो ग्रोथ विल बी वेरी मच लिमिटेड। बट अगर वही बोट आप दरिया में चलाओगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ नेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर यू नो यूजिंग योर बोट इन रिवर ओनली। बट इफ यू आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड्स, देन वी कैन से दैट यू आर यूजिंग योर बोट फॉर द सीज, और यू कैन से ओवरसीज। इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स कहीं से भी मिल जाएंगे, इंटरनेशनल कस्टमर्स मिल जाएंगे, एक से ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे। कई सारी ब्रांड्स ऐसी है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे कि MK, आपने शायद नाम सुना होगा, माइकल कोर्स, रेड रेबिट, एंड ऐसी कई सारी ब्रांड्स है। ऑटोमोबाइल्स की ब्रांड की अगर हम बात करें तो BMW है, Audi है, मर्सिडीज है, लेटेस्ट एग्जांपल किया देख लीजिए, किया है, MG है, एक सिट्रस भी एक नई आई है। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कस्टमर्स, वहाँ पे आपको कस्टमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर जो टैलेंट है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो आप कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज, कुछ ऐसे की एग्जीक्यूटिव्स है जिसका लेवल काफ़ी हाई है, तो उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो तो दे कैन हिट वेरी हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। वो वहाँ पे बढ़िया हिटिंग करके कंपनी को बढ़िया मुनाफा, नेम एंड फेम जो है वो अर्न करवा सकते हैं, एंड दैट्स गुड एक्चुअली, दैट इज गुड एक्चुअली। So that's all about the importance of international entrepreneurship to the firm.
फर्म को इतने सारे फायदे जो है वो हो सकते हैं, स्टार्टिंग विद द इंक्रीज्ड सेल्स एंड प्रॉफिट, लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कस्टमर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट. And yes, listen carefully, these benefits are not limited to these points only. You can write these too: wealth maximization, better technology, expansion, global reach, boost brand reputation, and all those things. You can write this down in your exams, no issues at all. So is it clear, class? Okay, good. So now we'll move to the next one. Yeah, barriers that affects international trade. These are the barriers that affects international trades. It is not like that every entrepreneurs are eager to work at international level. Some entrepreneurs are not ready to work at international level because of their attitude. When an entrepreneur has negative mindset that foreign market is unknown to him and he might find it difficult to set up his business in new country will prove to be a major barriers for international trades. When entrepreneur himself is not ready to spread their wings, then it's of no use. The attitude of entrepreneur matters a lot. If he is ready to take the risk, then and then only they can spread their wings. Otherwise, they won't. एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई नहीं, नया कंट्री है, फॉरेन मार्केट, नया मार्केट है, वी आर अननोन टू देम एंड ब्ला 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 ब्ला, और वो सब चीज़ें अगर वहाँ पे रहेगी तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क नहीं कर पाएंगे. इट्स द बिगेस्ट बैरियर for international trade. Then the second one is lack of information. As entrepreneur is new entrant in international market, he is unaware about the market conditions in host country जहाँ पे उसको बिजनेस करना है, वहाँ पे मार्केट सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे कस्टमर्स कैसे है, वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, and all those things. When he or she means the entrepreneur is not aware about that, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना अवॉइड करेंगे. So lack of information, then lack of network influence. Network with established business companies make it easy for the entrepreneur in new market entry. But if the entrepreneur has no contact in the foreign country, वहाँ पे फॉरेन में उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट वाला ही नहीं है, नो वन इज नोन टू हिम, टोटली न्यू मार्केट, टोटली न्यू कंट्री, नो कॉन्टैक्ट एट ऑल, नो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, नो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नथिंग एट ऑल, तो वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अवॉइड करेंगे कि भाई नहीं, ये बिजनेस में हमको नहीं जाना है क्योंकि इट्स अननोन टू अस टोटली. देन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, रिस्क भी उतना बड़ा होगा, एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दे डोंट हैव दैट मच फिनेंशियल प्लानिंग, और यू कैन से द फिनेंशियल रिसोर्सेज, इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल ना हो, इतना क्रेडिट अवेलेबल ना हो, एंड समथिंग लाइक दैट. तो ये भी एक बैरियर हो सकता है जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड करने से रोकेगा. देन टेक्निकल बैरियर्स, क्योंकि जिस कंट्री में आप जा रहे हो इट माइट बी पॉसिबल कि वहाँ के जो लोग हैं उसके पास आपसे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, आपसे भी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, आपसे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस वो लोग कर रहे हैं, कम प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन यू विल बी किक्ड आउट वेरी सून. आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल हो जाएगा. तो टेक्निकल बैरियर्स भी मैटर करते हैं. देन पॉलिटिकल बैरियर्स, जैसे कि अगर किसी को इंडिया में आना है तो पॉलिटिक्स काफ़ी मैटर करता है, आपकी पॉलिटिकल रीच कैसी है, एंड ऑल दोज थिंग्स, पॉलिटिक्स कितना स्टेबल है, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी मैटर करती है यहाँ पे. सो पॉलिटिकल बैरियर्स, जैसे कि नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में 17 साल में 17 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं. देन अवेलेबिलिटी ऑफ एचआर जो है, मैन पावर जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, अगर अवेलेबल है तो वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है,
आपको जो चाहिए उतनी मात्रा में अवेलेबल है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, वहाँ पे मैनेजमेंट के यूनियंस के साथ रिलेशंस कैसे, स्ट्राइक होती है कि नहीं होती है, लेबर लॉज क्या है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सब जो है वो फॉरेन मार्केट्स में काफ़ी अफेक्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज कल्चरल बैरियर्स। नो वन कैन बीट दिस वन। कल्चर ही पूरा डिफरेंट हो जाता है। इंडिया में गुजरात का कल्चर देखिए, महाराष्ट्र का कल्चर देखिए, गोवा का कल्चर देखिए, एंड पंजाब का कल्चर देखिए। सभी जगह पे आपको अलग अलग कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा, इवन इन द सेम कंट्री। तो यू कैन इमेजिन जब आप दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस करोगे तो वहां पे तो काफी ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स वाई कल्चरल बैरियर्स जो है वो भी काफी मैटर करते हैं, वो एक ऑब्स्टेकल है। उन लोगों का माइंडसेट कैसा है, द वे ऑफ लिविंग, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेंडिंग पावर, देयर माइंडसेट, देयर थॉट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके प्रेफरेंसेस, उसको क्या अच्छा लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में लोग जो है वो रियल एस्टेट में काफी कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेजरली दे इन्वेस्ट इन द कार्स एंड ऑल। तो ये टोटली अलग है, हमने जो कल्चर एक्सपेक्ट किया था उनसे तो टोटली अलग है। सो दिस इज हाउ इट मैटर्स। So that's all about the barriers to international trades. Any questions for this class? Yeah, okay. Yeah, that's it for the day. Thank you so much, class. We'll keep up to this only. In next session, we'll complete this remaining portion. Symptoms of industry sickness, what industry sickness stands for, suggestions to prevent this, and then entrepreneurial entry into the new business, or you can say the international business, ये हमने already कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हमने हो कर लिया। एंड दिस इज द लास्ट वन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एसएमई, ये हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। सो लास्ट 3 to 4 टॉपिक्स रिमेनिंग एज फार एज द सेकंड मॉड्यूल इज कंसर्न। या दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच क्लास, you may leave now. Thank you.